کی تفصیلات کی طرف بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ٹھنڈ اور سموگ سے لاہوریوں کا ہوا برا حال۔ شہر کا کم سے کم ٹمپریچر 4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر 14 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ فضائی آلودگی میں لاہور کا آج بھی تیسرا نمبر، اوسط AQI 186 ریکارڈ۔ کینٹ کے علاقے میں سب سے زیادہ ایئر کوالٹی انڈیکس 275 ریکارڈ کیا گیا۔ مزید تفصیلات ہمارے نمائندے زین علی سے۔ زین، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، شہر لاہور آج دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں تیسرے نمبر پر موجود ہے، جس کی فضائی آلودگی میں وہ کمی نہیں آ سکی۔ آج شہر لاہور کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 186 وہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ سب سے زیادہ ایئر کوالٹی انڈیکس لاہور کینٹ کے علاقے کا 275 وہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ اسی طریقے سے DHA فیز 8 اور اسے ملحقہ علاقوں کا ایئر کوالٹی انڈیکس 223 وہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ گلبرگ اور اسے ملحقہ علاقوں کا ایئر کوالٹی انڈیکس 215 وہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مال روڈ اور اسے ملحقہ علاقوں کا ایئر کوالٹی انڈیکس وہ 179 وہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ٹھوکر نیاز بیگ اور اسے ملحقہ علاقوں کا ایئر کوالٹی انڈیکس وہ 178 وہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سب سے کم آج بھی وہ جوہر ٹاؤن اور اسے ملحقہ علاقوں کا ایئر کوالٹی انڈیکس 152 وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اگر بات کر لیجیے آج شہر لاہور میں رہنے والے درجہ حرارت کی، تو محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر لاہور کا درجہ حرارت کم از کم 4 ڈگری جبکہ زیادہ سے زیادہ 14 ڈگری تک رہنے کا امکان وہ ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ اس وقت شہر لاہور میں 5 ڈگری سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ جو ہوا میں نمی کا تناسب ہے وہ 88% تک وہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ اس وقت شہر لاہور میں وہ ہلکی ہوا چلنے کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر لاہور میں آئندہ چند روز تک بارش کا وہ کوئی امکان نہیں۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ خشک سردی کے باعث نمونیا سے اموات کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ 24 گھنٹے کے دوران پنجاب بھر میں نمونیا کے باعث مزید 9 بچے دم توڑ گئے۔ جاں بحق ہونے والے 2 بچوں کا تعلق لاہور سے ہے۔ صوبہ بھر میں نمونیا کے 275 نئے کیس رپورٹ ہوئے۔ محمد بلال کی رپورٹ دیکھیے۔ سموگ اور خشک سردی کی لہر سے نمونیا کے کیسز میں اضافہ۔ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب بھر میں نمونیا کے مزید 9 بچے دم توڑ گئے۔ جاں بحق ہونے والے 2 بچوں کا تعلق لاہور سے ہے۔ نمونیا سے جاں بحق بچوں کی مجموعی تعداد 188 تک پہنچ گئی۔ پنجاب میں نمونیا کے مزید 275 کیس رپورٹ ہوئے۔ لاہور میں نمونیا کے 155 نئے کیس سامنے آ گئے۔ لاہور میں مجموعی کیسز کی تعداد 1430 جبکہ پنجاب میں 8140 سے زائد ہو گئی۔ چلڈرن اسپتال لاہور میں 60 سے زائد بچے زیر علاج ہیں۔ جناح سروسز جنرل اور گنگارم اسپتال میں بھی سینکڑوں بچے داخل ہیں۔ عام مارکیٹ میں نمونیا ویکسین اور ادویات بھی عدم دستیاب ہیں۔ محکمہ صحت پنجاب کا کہنا ہے کہ بچوں کو حفاظتی ٹیکوں کا کورس ضرور مکمل کروائیں۔ کیمرامین بابر کے ساتھ محمد بلال، لاہور نیوز۔ محکمہ صحت پنجاب کے زیر اہتمام 3 روزہ مشاورتی اجلاس۔ نگران وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان کا کہنا ہے کہ گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی انسانوں کی سیکیورٹی کا معاملہ ہے، جبکہ نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کا کہنا ہے کہ عوام کو صحت کی بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے ایویڈنس بیس سٹڈیز کو فروغ دینا ہوگا۔ محکمہ صحت پنجاب کے زیر اہتمام نجی ہوٹل میں 3 روزہ مشاورتی اجلاس نیشنل ایکشن ہیلتھ سیکیورٹی پلان کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ نگران وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا، ہمیں صحت کے شعبے میں خلا کو پر کرنا ہے، عوام کو صحت کی بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے ایویڈنس بیس سٹڈیز کو فروغ دینا ہوگا۔ This is basically a subject of primary health care in Punjab, but then again my department, the tertiary health care or specialized health care as we call it, and medical education is also extremely important to build up those capacities, because after all, if the medical colleges, nursing colleges, allied health colleges do not teach them how to do this, obviously when they join primary health care they will be lagging behind. وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی انسانوں کی سیکیورٹی کا معاملہ ہے۔ نیشنل ایکشن پلان تشکیل دینا پنجاب حکومت کا احسن اقدام ہے۔ ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کر ہمیں نئے پلان تشکیل دینے چاہیے۔ Who have assembled here with one mission, and that is to design a national action plan for global health security. This is a theme so close to my heart, and there are reasons why this is close to my heart. You witnessed
Pakistan is leading the global health security agenda in the world. सूबाई वजीर प्राइमरी से डॉक्टर जमाल नासिर का कहना था कि निगरान पंजाब काबीना आवाम को सेहत की बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए दिन रात काम कर रही है। हमें अल्लाह के सिवा किसी की मदद नहीं चाहिए। इजलास में डीजी हेल्थ डॉक्टर इलियास गोंदल, यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। सर्दी और अंडों के रेट बढ़ने की रेस जारी है। फार्मी अंडे मजीद 2 रुपये महंगे, फी दर्जन कीमत 412 रुपये। मार्केट में अंडों की पेटी 12,240 रुपये में फ़रोख्त। ब्रायलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त 7 रुपये सस्ता, फ़ी किलो कीमत 612 रुपये। जिंदा ब्रायलर की कीमत में भी 5 रुपये फ़ी किलो कमी। जिंदा ब्रायलर होल सेल 406, परचून रेट 422 रुपये। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिए इस बारे। हाँ जी बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नेफनामे जारी किए गए उसमें ब्रायलर की कीमतों में कमी, जबकि अंडों की कीमतों में एक बार फिर जो है इजाफा कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज अंडों की कीमतों में इस्तेहकाम था, कोई कमी बेशी नहीं की गई थी। ताहम एक रोज बाद ही अंडे मजीद 2 रुपये फी दर्जन महंगे कर दिए गए। 410 रुपये से कीमत बढ़ाकर 412 रुपये फी दर्जन कर दी गई है और होल सेल मार्केट में अंडों की पेटी 12,240 रुपये की सतह पर पहुंच चुकी है। मार्केट में फी अंडा शहरियों को 40 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है और इस हवाले से शहरियों का कहना है कि अंडों की कीमतों में मुसलसल इजाफा जो है वो किया जा रहा है, लेकिन इंतजामिया अंडों की कीमतें कम या कंट्रोल करने के लिए कोई इकदाम नहीं कर रही था। हम दूसरी जानिब ब्रायलर की कीमतों में कमी जो है वो देखने को मिल रही है। गुज़िश्ता रोज भी ब्रायलर की कीमत कम की गई थी, आज मजीद 7 रुपये तक जो है वो कीमतें कम की गई हैं। मुर्गी का गोश्त 619 रुपये से सस्ता करके 612 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया है। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 5 रुपये तक कमी की गई है। होल सेल जिंदा ब्रायलर 406, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 422 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। जी आपका बहुत शुक्रिया। महंगाई का राज बरकरार। निगरान पंजाब हुकूमत का 1 साल महंगाई का साल रहा। प्याज, टमाटर, लहसुन और अदरक समेत ब्रायलर और अंडों की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। निगरान पंजाब हुकूमत को 1 साल हो गया, लेकिन महंगाई में कमी हुकूमती तरजीहात में शामिल नहीं। 1 बरस के दौरान रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया रिकॉर्ड महंगी हुई। प्याज 1 साल कब 208 रुपए किलो था, जो आज 280 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। 70 रुपए फी किलो वाला टमाटर महंगा होकर 180 रुपए फी किलो तक पहुँच गया। 300 रुपए किलो वाला लहसुन चाइना 750 रुपए फी किलो तक बिकने लगा। अदरक थाईलैंड की कीमत भी तकरीबन डबल हो चुकी है। 370 रुपए किलो वाला अदरक मार्केट में 680 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जाने लगा। आलू भी 1 बरस पहले 35 रुपए फी किलो था, जो आज 80 रुपए फी किलो तक बेचा जा रहा है। 80 रुपए फी किलो वाले मटर महंगे होकर अब 300 रुपए फी किलो तक बिकने लगे हैं। पोल्ट्री मसनूआत भी महंगाई में पीछे न रही। फार्मी अंडे 1 साल पहले 275 रुपए फी दर्जन थे, जो मुसलसल महंगे होकर अब मार्केट में 440 रुपए दर्जन तक बिक रहे हैं। 500 रुपए फी किलो वाला यही ब्रायलर अब 620 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। शहरी भी महंगाई कंट्रोल न करने पर निगरान हुकूमत की कारकर्दगी से नाला हैं। कहते हैं रोजाना की बुनियाद पर कीमतों में इजाफा हो रहा है, लेकिन इंतजामी और हुकूमती एहलकार महंगाई कंट्रोल करने के लिए गैर संजीदा हैं। गरीब के लिए हर आने वाला दिन तकलीफ में इजाफे का बायस बन रहा है। निगरानों की निगरानी में फल भी सस्ते न रहे। सेब काला कुल्लू 1 साल पहले 245 रुपए किलो था, जो आज 400 रुपए फी किलो तक है। केला दर्जावल 200 रुपए, जबकि कीनू अब 320 रुपए फी दर्जन तक बिकने लगा है। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। IMF ने पाकिस्तान में आइंदा माली साल के दौरान महंगाई की शरह बुलंद रहने की पेशगोई कर दी। आलमी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मंडी में अशिया खुरनोश महंगी होने से पहले महंगाई के सताए पाकिस्तानी अवाम के शदीद मुतासर होने का इम्कान। पाकिस्तान में आइंदा माली साल भी महंगाई 18.5% की बुलंद शरह पर रहने की पेशगोई। देही इलाकों में महंगाई की शरह 25.9% तक रहने का इम्कान। IMF ने पाकिस्तानी अवाम के लिए खतरे की घंटी बजा। IMF रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पर बैरूनी अदायगियों का दबाव फौरी खत्म नहीं होगा। करंट अकाउंट खसारा मईशत का 1.6% रहेगा। IMF ने पेशगोई की है कि मालियाती इदारों की जानिब से फंडिंग में ताखीर मईशत को मुतासिर करेगी। स्टॉक
एक्सचेंज रेट पर भी दबाव आ सकता है। रिपोर्ट में खौफनाक अमर ये है कि आलमी मंडी में अशिया खुरनोश महंगी होने से पहले महंगाई के मारे पाकिस्तानी अवाम शदीद मुतासिर होंगे। IMF ने अंदिया दिया है कि जून तक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में कोई इजाफा नहीं होगा, जबकि तरक्याती बजट में 61 अरब रुपए की कटौती होगी। रिपोर्ट में पाकिस्तानी इदारों नेपरा और ओगरा से कहा गया है कि बिजली व गैस की कीमतें बढ़ाने के नोटिफिकेशन बर वक्त जारी करे, जबकि गैस के रेट में शशमाही इजाफे की शर्त भी बरकरार रहेगी। शदीद सर्दी में लाहौरियों को गैस बहरान का सामना, गैस की लोड शेडिंग और लो प्रेशर की शिकायत में इजाफा। शहर की गुंजान और नशेबी आबादियों में गैस नायाब होकर रह गई। लोग महंगे सिलेंडर और लकड़ियां खरीदने पर मजबूर हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तो गैस कई रोज़ से नहीं आ रही। ख़वातीन को सुबह और शाम को खाना पकाने के लिए महंगी लकड़ियां और सिलेंडर जलाने पड़ते हैं। ज़राए के मुताबिक इमामिया कॉलोनी, शाहदरा, गुलशन रावी, समनाबाद, इस्लामपुरा, राजगढ़ और कला गुजर सिंह में गैस का प्रेशर नहीं। इसके अलावा गड़ी चाहू, शादबाग, सुल्तानपुरा और भट्टा चौक में भी गैस प्रेशर इंतहाई कम। मोगलपुरा, दरोगा वाला, शालामार, धर्मपुरा और चाइना स्कीम में गैस की बंदिश जारी। सर्दी की शिद्दत बरकरार, लकड़ी और कोयले की मांग में इजाफा हो गया। दुकानदारों ने कोयले और लकड़ी की कीमतें बढ़ा दी। LPG महंगी होने के बायस शहरी लकड़ियां खरीद कर खाना पकाने पर मजबूर। यकबस्ता मौसम में लकड़ी और कोयले की मांग बढ़ गई। दुकानदारों ने भी कोयले और लकड़ी की कीमतों में इजाफा कर दिया। LPG महंगी होने के बायस शहरी लकड़ियां जलाकर खाना पकाने पर मजबूर हैं। टाल मालिकान कोयला 130 रुपए और खुश्क लकड़ी 40 रुपए फी किलो तक फरोख्त कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि मौसम सरमा में कोयले का इस्तेमाल बढ़ जाता है। सर्दी को दूर भगाने और खाना पकाने के लिए लकड़ी और कोयले का इस्तेमाल करना पड़ता है। लकड़ी भी बहुत महंगी है और कोयला भी बहुत महंगा है। ये तो हुकूमत को चाहिए ना, मेरा मकसद कि हमें कोई रिलीज दे ना कोई, क्या समझे, ये तो लूटने के लिए बस तैयार है। गैस की तो कमी आ रही है, उसकी वजह से लोड शेडिंग बहुत है। अभी देखने लकड़ी का इस्तेमाल करे, आए हुए हैं टाल पे भाई से लकड़ी लेने। गैस तो ना होने के बराबर आती है ना सर्दियों में, तो इस सूरत में वो लोग फिर कोयले का और लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। रीज़न यही है कि सर्दियों में गैस आती नहीं है। शहरियों का मजीद कहना था कोयले और लकड़ी की खरीदारी भी अब आसान नहीं रही। हर चीज महंगाई की लपेट में आ चुकी है। कैमरामैन इकरामुल हसन के साथ मोबीन हैदर, लाहौर न्यूज। कौन डालेगा महंगाई माफिया को लगाम? शहरी सब्जियों और फलों के दाम सुनकर परेशान। लहसुन 750, अदरक 680, प्याज 280, टमाटर 180 रुपए किलो फरोख्त, करेले 480, मटर 300, शिमला मिर्च 280, मेथी 220, साग और आलू 80 रुपए किलो, अनार बदाना 950, खजूर ईरानी 600, सेब 440, अमरूद 180 रुपए किलो, कीनू 320, केला दर्जा अव्वल 200 और दर्जा दोम 140 रुपए दर्जन में दस्तयाब। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नज़रनामे जारी किए गए उसमें 3 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। जिन सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है उनमें करेले 10 रुपए बढ़ाकर 260 रुपए सरकारी रेट में मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन मार्केट में करेले की कीमत जो शहरियों से वसूल की जा रही है वो 480 रुपए फी किलो तक है। इसी तरह साग 3 रुपए इजाफे के बाद 58 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में दर्जा अव्वल का साग जो है वो 80 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि घिया कद्दू की कीमत में 5 रुपए का इजाफा किया गया और सरकारी रेट में 140 रुपए आज कीमत मुकर्रर की गई है। मार्केट में यही घिया कद्दू 140 के बरक्स 180 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। फलों के सरकारी रेट में 3 फल जो है आज महंगे किए गए हैं, जिसमें सेब काला कुल्लू 5 रुपए इजाफे के बाद 300 रुपए मुकर्रर किया गया। ताहम मार्केट में सेब काला कुल्लू दर्जा अव्वल जो है वो 440 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि मिक्स दर्जे का सेब जो है वो 350 से 400 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अनार बदाना 10 रुपए इजाफे के बाद 640 रुपए मुकर्रर किया गया। मार्केट में यही अनार बदाना 940 से 950 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अमरूद 5 रुपए महंगा करके 140 रुपए मुकर्रर किया गया। ताहम मार्केट में अमरूद जो है 180 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। किन्नू 175 रुपए फी दर्जन मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में किन्नू 320 रुपए दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दीगर तमाम सब्जियां और फल जो है वो सरकारी नरखनामों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। और इस हवाले से शहरियों का यह कहना है कि रोजाना की बुनियाद पर नरखनामों में कीमतों में इजाफा होता है, लेकिन इसके बावजूद सरकारी रेलिस्टों पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। जी आपका शुक्रिया अब्दुल कादिर। गैर मियारी खुराक फरोख्त करने वालों की शामत आ गई। फूड सेफ्टी टीमों की सिटी एरिया में कार्रवाइयाँ, दाखिली रास्तों पर नाकाबंदी करके दूध का मेयार चेक किया।
पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमों ने दाखिली रास्तों पर चेकिंग के दौरान 1,10,000 लीटर से ज़ायद दूध का मुआयना किया। 1,000 किलोग्राम नाकिस दूध तल्फ कर दिया गया। सिटी एरिया में 23 फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई। नाकिस इंतजामात पर 2 यूनिट बंद, 17 पॉइंट्स को 2,44,000 के जुर्माने और 4 फूड पॉइंट्स को इस्लाही नोटिस जारी किए गए। 3,000 किलोग्राम नाकिस अचार, 100 लीटर इस्तेमाल शुदा आयल, 50 किलोग्राम मुज़र सेहत गोश्त भी तल्फ किया गया। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जवेद का कहना है कि ज़ायदुल मियाद अशिया की मौजूदगी और सफाई के इंतहाई नाकिस इंतजामात पर कई फूड पॉइंट्स को बंद भी किया गया। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी लाहौर में अपने हल्के में इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं, अवाम इलेक्शन के रोज़ नमाज फजर पढ़कर घर से निकलें और फिर शेर पर मोहर लगाकर नवाज शरीफ को कामयाब बनाएं। लाहौर के हल्का NA 123 में रौनकें लग गईं। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज करने पहुंचे तो अवाम ने वालिहाना इस्तकबाल किया। पार्टी तराने गूंजते रहे। कारकुनों ने फूलों की पत्तियां निछावर की, ढोल की थाप पर बंगरे डाले गए। गजुमता में मरकजी इंतखाबी दफ्तर के बाहर खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम 8 फरवरी को नवाज शरीफ को कामयाब करवाने के लिए शेर पर मोहर लगाएं और मुल्क बचाएं। नवाज शरीफ चौथी मरतबा वजीर आजम बनकर एक बार फिर सारे मसाइल हल कर देगा। आपने 8 फरवरी को फजर की नमाज पढ़ के अल्लाह के हुजूर दुआ करके पोलिंग बूथ पे जाना है, शेर को मोहर लगानी है, नवाज शरीफ को जिताना है, पाकिस्तान को बनाना है। बनाओगे, मेहनत करोगे, पाकिस्तान, नवाज शरीफ। इंतखाबी मुहिम के दौरान शहबाज शरीफ ने अपने इंतखाबी हल्का में गजुमता से लेकर कान्हा, सुए आसल, सेंट्रल पार्क, पुराना कान्हा समेत 20 अहम पॉइंट्स पर रुककर कारकुनों का शुक्रिया अदा किया। NA 119 में अली परवेज़ मलिक की जानिब से मरीम नवाज की इंतखाबी मुहिम जारी। यूनियन कौंसिल 144 में कारकुनान और आवाम से मुलाकात। अली परवेज़ मलिक का कहना था कि इलेक्शन में कामयाबी के बाद लोगों के मसाइल हल करेंगे। NA 119 में रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज की इंतखाबी मुहिम जारी है। नून लीगी रहनुमा अली परवेज़ मलिक का यूनियन कौंसिल 144 का दौरा, इलाका मकीनों और कारकुनान से मुलाकात की। यूनियन कौंसिल के चेयरमैन मियां साजिद रऊफ ने रहनुमा मुस्लिम लीग नून अली परवेज़ मलिक का इस्तकबाल किया। अली परवेज़ मलिक ने कहा कि इलेक्शन में कामयाबी के बाद लोगों के मसाइल हल करेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरीम नवाज 25 जनवरी को अपने हल्के का दौरा करेंगी। अली परवेज़ मलिक ने कारकुनान को मरीम नवाज के शानदार इस्तकबाल के लिए तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी की। इलेक्शन के बाद गहमा गहमी जारी है और ये मनाजर भी आप देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से हल्का 119 में सियासी सरगर्मियाँ जारी हैं। अली परवेज़ मलिक ने कहा कि इलेक्शन में कामयाबी के बाद लोगों के मसाइल हल करेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरीम नवाज 25 जनवरी को अपने हल्के का दौरा करेंगी। अली परवेज़ मलिक ने कारकुनान को मरीम नवाज के शानदार इस्तकबाल की तैयारियाँ मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी की है। इलेक्शन नज़दीक है, इस हवाले से सियासी गहमा गहमी भी अरूज पर है। तमाम जमातें इस हवाले से अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रही हैं और मुस्लिम लीग नून भी इस हवाले से कैंपेन में सरगर्म है और अली परवेज़ मलिक की हल्के में आमद हुई है। हल्का 119 है जहां से मरीम नवाज इलेक्शन लड़ रही हैं और इस हवाले से अली परवेज़ मलिक ने कहा कि मरीम नवाज बाकायदा कारकुनान से मिलेंगी और आवाम से मुलाकातें भी करेंगी। इस हवाले से तमाम चीज़ें तैयार रखी जाएँ और कारकुनान मरीम नवाज का पुरतपाक इस्तकबाल भी करें। हल्का NA 119 में इलेक्शन सरगर्मियाँ जारी हैं।